Hello students, today will we discuss about the wild colonial war। आज हमारा टॉपिक है द वाइल्ड कॉलोनियल वॉर, जो कि W.C. वेंटवर्थ ने लिखा है। ओके, इट इज़ ऑफ अ वाइल्ड कॉलोनियल वॉर। जैक टूलन वॉज हिज नेम, ऑफ पुअर बट ऑनेस्ट पेरेंट्स। ही वॉज born in a coastal Maine। He was his father's only hope, his mother's pride and joy, and so dearly did she parents love their wild colonial boy। देखिए, ये जो पोयम है, ये एक तरीके से कॉलोनियल बॉय यानी कि उपनिवेशी बालक की कहानी का वर्णन करती है, जो एक तरीके से गुलाम होकर नहीं जीना चाहता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो इस चीज़ से विद्रोही हो गया और उसको गोली मार दी गई। ठीक है, देखिए पोयम का रेफरेंस है ये। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय कंपोज्ड बाय W.C. वेंटवर्थ। इस टाइप से लिखा जाएगा। ओके, फिर है कॉन्टेक्स्ट। The poem describes the story of a wild colonial boy who did not want to live like a slave. He turned into a rebel and was shot dead। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे explanation। The unknown poet tells us the daring tale of an untamed boy. He was fearless and his name was John Doolan। He was born to poor but honest parents in Castlemaine. His father helped that it would be a promising lad and earn name and fame. His mother was proud of him. The parents loved him very much. He was an apple of his parents' eye. When he was convicted of highway robbery, he escaped death sentence and turned into a rebel and started a guerrilla war against the government. He made a gang and asked his parents to live like freedom on high mountains. They would plunder and live and die together. They would roam about freely in plains and valleys and not live the life of slavery. He started his corner of a highwayman in 1865. He was daring and was not afraid of his enemies. They commanded him to surrender, but he did not surrender. He fired and shot dead a trooper. Then he received a bullet that ended his life। देखिए, ये जो है हमारा पेपर थर्ड है। पेपर थर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें क्या है कि जो पोएट है वो एक उपनिवेशी बालक की कहानी का वर्णन करते हैं, जो कि एक तरीके से गुलाम की भांति नहीं जीना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा निडर था। उसका नाम जॉन डूलन था। वह एक ऑनेस्ट पेरेंट्स की संतान था। उसका जन्म कास्टलमेन में हुआ। उसके पिता को आशा थी कि वो एक अच्छा बच्चा बनेगा। उसकी माता को भी उस पर प्राउड था। पेरेंट्स की आंखों का वो तारा था। वो सब बहुत ज़्यादा लव करते थे। ओके, then come along my heirs and we will roam the mountains high. Together we will plunder, together we will die. We will wander over the valleys and we will gallop over plains and we will scorn to live in slavery, bound down in iron chains। देखिए क्या था, जो बच्चा था उपनिवेशी बालक, वो बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन एक उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे। वह विद्रोही हो गया और उसके जो शत्रु थे, गुरिल्ला युद्ध उसने स्टार्ट कर दिया और उसने गुलामी का जीवन त्याग दिया। ओके, जो बालक था उसने अपने साथियों से कहा कि वो दास्ता का जीवन त्याग कर उसके साथ सम्मिलित हो जाए। वे ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर घूमेंगे और जो धनी लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको लूटेंगे। ओके, ये सब उनकी प्लानिंग थी। वे और उस धन पर जिएंगे, मतलब वो साथ जिएंगे, साथ ही मरेंगे।
आज़ादी के साथ वो घाटियों में रहेंगे, मैदानों में घूमेंगे और वो गुलामी का जीवन त्याग कर स्वतंत्र रहेंगे। ये उसने बच्चे ने सोचा था। Thus in 1865 he started his wild career with a heart that had no danger, no foeman did he fear. He struck up the Royal Mail, beach coach and robbed Judge McEvoy. With a tremble hand gave up the gold to wild colonial boy. इसमें क्या, इट वॉज एन इंसिडेंट्स ऑफ 1865 when he started his wild career of a highwayman. He started looting people as he was daring. He was not afraid of any danger or enemy. Okay. He attacked the Royal Mail, beach coach and took for civil Judge McEvoy's gold. When threatened the judge of dire consequences, he handed over his wealth to the wild colonial boy with a shaking hand. इस बच्चे ने क्या करा, जो उपनिवेशी बच्चा था यानी वाइल्ड कॉलोनियल बॉय था, उसने लुटेरे का जीवन 1865 में ही आरंभ कर दिया था। वह बहुत ज़्यादा निडर था, उसे ना तो किसी चीज़ का डर था, ना ही किसी शत्रु से भयभीत था। उसने रॉयल मेल बीच कोच पर आक्रमण कर दिया था। जज थे जो मैकओवे, उनसे क्या करा, उनके धन छीन लिया था। जब उसने जज को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी तो उसने कांपते हुए हाथों से अपना धन उसको दे दिया। ओके। एज जॉन रोड आउट वन मॉर्निंग and riding slowly on when listening to the little birds, they sweetly sang their song. He spied 3 mounted troopers, Kelly, Davis and Fitzroy, all riding up to capture the wild colonial boy. One morning John went out somewhere sitting on his horseback. He was riding slowly listening to the sweet song of the little birds chirping in the morning. He saw 3 soldiers riding their horses. They had been searching for him and wanted to arrest him. Their names were Kelly, Davis and Fitzroy. They were coming to him. एक दिन क्या हुआ, जब वह कहीं जा रहा था घोड़े पर, तभी उसे छोटी छोटी चिड़ियों की बहुत अच्छी सी आवाज़ सुनाई दी। वो मधुर संगीत सुन रहा था, तभी उसने देखा कि 3 सैनिक घोड़े पर सवार होकर आ गए और उसको बंदी बनाना चाहते थे। उनके नाम कैली, डेविस और फिट्जरॉय थे। ओके। The 3 mounted soldiers commanded the wild colonial boy to give up his struggle to fight or escape. As there was no chance for him to flee, the brave boy did not surrender to them. Instead, he fired at them and shot Kelly dead. Then he turned to Davis, but he received a bullet that ended his life. देखिए क्या होता है, जब वो 3 सैनिकों ने उसे चुनौती दी कि वो उसको समर्पण कर दे। ओके। उसको बोला था कि वो समर्पण कर दे, क्योंकि उसके बच निकलने की कोई भी संभावना नहीं थी। वे 3 थे और वह अकेला था। परंतु जब साहसी बालक ने समर्पण नहीं किया तो उसने उन पर गोली चला दी और कैली को मार गिराया। फिर डेविस की ओर मुड़ा, तभी उसको एक गोली लगी जिसने उसके जीवन का अंत कर दिया। यानी वो बच्चे की डेथ हो गई। इसमें यही बात बताई गई है कि जो व्यक्ति है वो अपनी आज़ादी के लिए किसी भी तरीके के गलत रास्ते पर चला जाता है और फिर उसकी इस तरीके से मौत हो जाती है। ओके। उसके पास स्वयं की रास्ता से मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं था। वह विद्रोही हो गया था और मारा गया। This poem is written in a very simple language. The thought expressed in it is not complicated. Though the poem is written in
unrhymed words, it is read like a children's song, it is not a poem of appreciation. The carrier of highway man is not the carrier of a gentle for respectable man. We appreciate him only for his spirit of he turned into a rebel and was shoot dead. ये जो पोयम है ये हमें बताती है कि आज़ादी की भावना सबसे कमज़ोर उत्पीड़ित लोगों में बहुत तीव्र थी। ये पोयम ये भी बताती है जो उपनिवेशवादी थे उपनिवेशितों का किस तरीके से शोषण करते थे। इस पोयम में कोई विशिष्ट बात नहीं है, पोयम में कोई नाटकीय मोड़ नहीं है। अनियंत्रित उपनिवेश बालक को आज़ादी का मूल्य चुकाना पड़ा, परंतु पोयम लोगों के हृदय में आज़ाद व्यक्ति की भांति जीने की इच्छा उत्पन्न करती है। ओके, द पोएम इज रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। इसमें क्या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और उन्होंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है जो कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये अनराइम्ड वर्ड्स में लिखी गई है। ओके, इस पोएम में कोई भी हाई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ एक वाइल्ड कॉलोनियल बॉय का कैरेक्टर दिखाया गया है। द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय इज अ डिस्क्रिप्टिव पोएम बाय सम अननोन पोएट।